Now we are going to discuss about the determination of order of reaction. First method, that is graphical representation. Graphical representation can be understood by using rate law. You know that rate of any chemical reaction is directly proportional to active mass. That is, rate is directly proportional to capital A, active mass of A. If a reaction proceed in such a way that n mole of capital A change into product, then the rate will be written as rate directly proportional to active mass of n, active mass A power n, and rate equal to K, active mass of A power n, where K is the rate constant, K is the rate constant and n is the order of reaction. So if you can draw a graph between rate and concentration, suppose rate represented along y-axis and concentration represented along x-axis, then at different time interval these points are obtained and these points can be continued to form a single straight line structure. This straight line, so the concentration of reactant directly change with respect to rate, or you can say rate is directly proportional to concentration. This is known as rate. For first order, rate is equal to active mass of K power 1. Then we plot a graph with respect to this. Rate along y-axis and concentration along x-axis, then a straight line obtained. This is representation of first law. Similarly, for second order, rate equal to rate constant into active mass of A power 2, where value of n equal to 2, then this is known as second order. In this condition, you can draw a graph between active mass of A power 2 and a rate, then also find a straight line. This indicates that the rate will be second order. Similarly, for third order, rate equal to rate constant into active mass of A power 3. Then you can draw a graph between A power 3 and rate. Also find a straight line. It indicates that if this straight line follow the equation of rate,
then this is known as third order rate of reaction. Third order reactions. Limitations of graphical method of determination of order of reaction. अगर हम ग्राफिकल मेथड से डिटरमाइन करते हैं तो उसमें लिमिटेशन क्या कमियां हैं. इट एप्लीकेबल ओनली व्हेन ओनली वन रिएक्टेंट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन. अगर एक ही रिएक्शन का रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करता है तो उस केस में तो ग्राफिकल मेथड यूज कर सकते हैं, अदरवाइज ग्राफिकल मेथड यूज नहीं कर सकते. दूसरी चीज यहां पे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए. ए रिएक्शन 2A चेंजेस टू प्रोडक्ट. इसका मतलब ये डाइमराइजेशन हो रहा है. डाइमराइजेशन ऑफ रिएक्टेंट A टेक्स प्लेस एट द रेट 9.1 into 10⁻⁻6 mole per liter per second when initial concentration is 0.01 mole per liter. As you know, rate law rate equal to K into active mass of A. Since this reaction is second order, then power will be 2. What happened? K is known as rate constant. Rate constant K equal to rate upon active mass of A power 2. Rate 9.1 into 10⁻⁻6. इसका इनिशियल कंसंट्रेशन 0.01 अपॉन 0.01 पावर 2. अब इसको सॉल्व करेंगे. ये होगा 9.1 इंटू 10⁻⁻2 ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड. टर्म आइसोलेशन को समझिए. आइसोलेशन का मतलब होता है किसी ग्रुप से एक को निकालना. इसी को कहते हैं आइसोलेशन. अगर हमारे पास बहुत सारे मिक्सचर हैं तो सपोज हमारे पास A है, B है और इसके साथ C है, तो इसमें से सिर्फ एक पार्टिकुलर कंपोनेंट को लिया जाए तो इसको बोलेंगे आइसोलेशन. अब इस मेथड से पता चल गया कि अगर हमारे पास कंपोनेंट A B C है, मीन्स अगर A प्लस B प्लस C ये मिलकर के प्रोडक्ट P बनाते हैं, उस केस में हम अगर रेट को डिटरमाइन करना चाहते हैं तो किसी एक को कंसीडर करेंगे, बाकी को कंसीडर नहीं करेंगे एट ए टाइम. फॉर एग्जाम्पल, सपोज ऑर्डर ऑफ A, order with respect to A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर अगर निकालना चाहते हैं तो उस केस में when concentration of B and C ignored, then order will be N1. Similarly, order with respect to B, when concentration of A and C ignored is N2, and order with respect to C, when
concentration of B and A ignored is N3. Then overall order of reaction equal to N1 plus N2 plus N3. This is the method used when more than one component participate in a reaction. नेक्स्ट है इनिशियल रेट मेथड. अब यहाँ पे टर्म है इनिशियल, मीन्स जब भी कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो अपना एक इनिशियल रेट, सपोज आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो तुरंत उसका रेट कुछ और होता है, बाद में कुछ रेट अलग होता है. तो इसी तरह से यहाँ पर इनिशियल की बात कही गई है. इनिशियल मीन्स होता है स्टार्टिंग स्टेज में, जब हमारे पास टाइम अभी स्टार्ट हो रहा है उस टाइम पर जो रेट होगा उसको बोलेंगे इनिशियल रेट मेथड. इसमें सपोज अगर हमारे पास ए है, चेंज होगा प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट ए चेंज इनटू प्रोडक्ट, देन व्हाट हैपन, रेट इक्वल टू के एक्टिव मास ऑफ ए पावर एन. एन इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. एन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. सपोज अगर एक्टिव मास को टर्म कंसंट्रेशन के फॉर्म में लिखें तो हम रेट को आर के फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा आर इक्वल टू के एंड कंसंट्रेशन सी पावर एन. सपोज स्टेज 1 से स्टेज 2 में जा रहे हैं, R1 इक्वल टू के कंसंट्रेशन C1 अपॉन N. सिमिलरली R2 इक्वल टू के C2 पावर N. अब इसको R1 अपॉन R2 इक्वल टू C1 upon C2 power n. This is the method for determination of order of reaction with respect to initial rate and अब ये क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग डाटा. एक डाटा दिया हुआ है जिसमें रिएक्शन A प्लस B, रिएक्शन एक है जिसमें रिएक्टेंट A प्लस B चेंजेस टू प्रोडक्ट. कोई दो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, जिसमें फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट किया गया, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में ए रिएक्टेंट ए के जो कंसंट्रेशन थे वो 0.1 m मोलर मीन्स मोल पर लीटर. यहां भी कैपिटल एम लिखा हुआ है, इसका मतलब मोल पर लीटर कंसंट्रेशन है. इसी को हम एक्टिव मास भी बोलते हैं. तो ये इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी. और ठीक उसी केस में जब ये कंडीशन थी तो इसका इनिशियल रेट आया था 2.1 इंटू 10⁻³ नेक्स्ट सेकेंड एक्सपेरिमेंट में इसकी वैल्यू चेंज हो रही है और इसकी यानी बी की वैल्यू जो है सेम है, रेट अलग है. अगर इस तरह से आपको डाटा दिया है, क्वेश्चन आपका यह है डिटरमाइन द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए बी एंड ओवरऑल ऑर्डर. तो हमें क्या करना है, इसमें तीन क्वेश्चन बन गए. ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना है, बी के रिस्पेक्ट में निकालना है और ओवरऑल ऑर्डर निकालना है. तो हमें पहले रेट विद रिस्पेक्ट टू ए. अब हम कैसे निकालेंगे, इस केस में देखिए ये फर्स्ट और सेकेंड केस ऐसी है जिसमें बी के रिस्पेक्ट में बी का जो ऑर्डर, बी की कंसंट्रेशन है चेंज नहीं हो रहा है. तो कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी तो इसकी वैल्यू आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, क्योंकि रेट R1 अपॉन R2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 पावर n. और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं R1 कितना है 2.1 इंटू 10⁻³ अपॉन 8.4 इंटू 10⁻³
कंसंट्रेशन इसके रिस्पेक्ट में, ये दोनों कंसंट्रेशन इसकी सेम है इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी कैंसिल हो जाएंगी। इसमें कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्सपेरिमेंट फर्स्ट 0.1 अपॉन 0.2 पावर n, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हम कैसे निकालेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसको करेंगे ये बनेगा आपका 1/8। 1/8 को हम लिख सकते हैं क्या, 1/2 का पावर 2, और इसको लिख सकते हैं 1/2 पावर n। अब इन दोनों को इक्वेट कर लेंगे, n इक्वल टू 2, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू a इक्वल टू 2। दूसरी केस देखते हैं, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू b, b के रिस्पेक्ट में ऑर्डर देखेंगे। b के केस में a की कंसंट्रेशन सेम आ रही है, तो अब यहां पे इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब हमें लिखना है रेट R2 अपॉन R3 इक्वल टू C2 अपॉन C3 पावर n। अब यहां पे इन R1 R2 दोनों की वैल्यू सेम है, R2 R3 ये दोनों सेम है, ऐसे लिख सकते हैं 8.4 इंटू 10⁻³ अपॉन 8.4 इंटू 10⁻³ इक्वल टू 1.0 अपॉन 2.0 पावर n। अब ये वैल्यू कट के हो जाएगी 1 इक्वल टू 1.0 अपॉन 2.0 पावर n। अब यहां पर देखिए किसी की वैल्यू अगर x की वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू होती है 1, x का पावर किसी का भी पावर 0 होगा, इसकी वैल्यू होती है 1, तो इसका मतलब हो गया n इक्वल टू यहाँ पे 0। तो आपको a और b के रिस्पेक्ट में ऑर्डर मिल गया। ओवरऑल ऑर्डर कैसे निकालेंगे, ओवरऑल ऑर्डर इक्वल टू 2 + 0 इक्वल टू 2। ये आपका जो रिएक्शन है वो सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन बनी। नेक्स्ट है आपका फ्रॉम यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू हमें रेट कांस्टेंट की यूनिट दी गई है तो भी हम गेस कर सकते हैं कि वो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होगी, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर। अब इसके लिए करना क्या है, हमें यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट देखना होगा। रेट कांस्टेंट की यूनिट कैसे लिखेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन मीन्स मोल पर लीटर पावर 1 - n टाइम इनवर्स। अब इसमें फॉर जीरो ऑर्डर देखिए, फॉर जीरो ऑर्डर क्या होता है, जिसमें कंसंट्रेशन किसी रिएक्टेंट की चेंज नहीं होती, एज इट इज बने रहे जीरो ऑर्डर। तो n की वैल्यू हमें क्या रखना होगा, 0, n इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू 0 रख देंगे, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो यहां पर ऑर्डर मिलेगा 10। यूनिट इज मोल पर लीटर पर सेकेंड फॉर फर्स्ट ऑर्डर n इक्वल टू 1। n आपका ऑर्डर है, इसकी वैल्यू 1 रखेंगे, 1 - 1 0 हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 का ये पूरा 1 हो जाएगा, किसी का पावर 0 का मतलब 1 हो जाएगा, और ये टाइम केवल रह जाएगा। तो इस केस में यूनिट बनेगी 10। यूनिट इज
सेकेंड इनवर्स। फॉर सेकेंड ऑर्डर, अब यहां पे 2 रखेंगे तो इसकी वैल्यू माइनस में हो जाएगी। अब यहां पर देखिए मोल पर लीटर 1 माइनस 2 सेकेंड इनवर्स, यहां पे साइन होगा नेगेटिव, तो ये होगा लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इस तरह से आप यूनिट के बेस पर डिटरमाइन कर सकते हैं कि 0 ऑर्डर होगा, फर्स्ट ऑर्डर होगा। एन की वैल्यू सिर्फ निकालना है। एन इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सिर्फ आपको एन की वैल्यू निकालना है। एन की वैल्यू निकालते ही पता चल जाएगा कि ये जो रिएक्शन दी गई है वो किस ऑर्डर की बन सकती है। फ्रॉम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड, अब इसमें देखिए इंटीग्रेटेड मीन्स ईच ऑर्डर हैव इट्स ओन इंटीग्रेटेड इक्वेशन। इफ rate constant is same, then that follow particular order of reaction. सपोज हमारे पास कोई फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, तो फर्स्ट ऑर्डर का अपना एक इक्वेशन होगा और उस इक्वेशन को अभी हम आगे पढ़ेंगे। सिर्फ अभी इतना जान लीजिए कि अगर इस इक्वेशन के में जो इक्वेशन में वैल्यू दी गई है, इसको वैल्यू को रखते हैं, वैल्यू पुट कर दें और जो कंडीशन मिलकर के आए, रेट कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा हमेशा कांस्टेंट मिले, 2 एक्सपेरिमेंट 3 एक्सपेरिमेंट 4 एक्सपेरिमेंट में रेट की वैल्यू, रेट कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट मिल रही है, तो वो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करेगा। अगर इस इक्वेशन को फॉलो कर जाए तो उसको बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन है। अगर यहां पर इस इक्वेशन को फॉलो कर जाए तो इसको बोलेंगे थर्ड ऑर्डर की इक्वेशन। अब यहाँ पे जो टर्म्स यूज किए गए हैं वो के क्या है? के है आपका रेट कांस्टेंट, ए इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, एक्स इज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, कितना प्रोडक्ट बना है, और टी आपका टाइम, टाइम की वैल्यू और कंसंट्रेशन की वैल्यू अगर रख करके के की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया जाए तो हमेशा हर एक कंडीशन में एक्सपेरिमेंट की वैल्यू सेम आए तो इसको बोलेंगे हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इस तरह से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को सॉल्व करने के लिए और भी प्रैक्टिस करिए, और इसमें जितना नोट्स दिया हुआ है ये सारे पॉइंट्स आप नोटबुक में नोट करिए, क्योंकि जब तक नोट नहीं करेंगे, लर्न नहीं होगा, तब तक के इसको केवल रीड करने से आपको समझ में नहीं आएगा, प्रैक्टिस में नहीं आ पाएगा, इसलिए करना जरूरी है इसको। हाफ लाइफ पीरियड, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट हाफ ऑफ द रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट इज नोन एज हाफ लाइफ पीरियड। जितने टाइम में कोई भी रिएक्टेंट अपना हाफ अमाउंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेता है उसको बोलते हैं हाफ लाइफ। अब हाफ लाइफ देखिए, हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में चलेगा। अब यहाँ पे जो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर, 0 ऑर्डर, जो भी रिएक्शंस होगी वो इस टर्म में लिखी जाएगी n1 माइनस n, जहां n क्या है, n इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, n इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसको बोलेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब केस फर्स्ट सेकेंड में देखते हैं, 2 डिफरेंट स्टेज, 2 अलग अलग स्टेज में लिया जाए। T1 स्टेज पर ये था a पावर 1 माइनस n, और T2 पर ये था। आफ्टर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को टेकिंग लॉग लेंगे तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब यहां पे जो वैल्यू आएगी वो C2/C1 n-1, ये आपका फाइनल इक्वेशन मिल जाएगा। इसके बेस पर हम हाफ लाइफ से ऑर्डर डिटरमाइन कर सकते हैं। एग्जांपल देखिए, फॉर 0 ऑर्डर n इक्वल टू 0, अब यहां इसकी वैल्यू 0 रख देंगे तो क्या होगा,
C1 अप C2 अपॉन C1 पावर -1 या ऐसे लिख सकते हैं 0 -1 हो गया। T हाफ 1 अपॉन T हाफ 2 ये होगा। इसका मतलब जिसमें अगर हम ग्राफ प्लॉट करें टी हाफ एंड कंसंट्रेशन along x एक्सिस एंड टी हाफ along y एक्सिस। अब यहां पे ग्राफ जो मिलेगा आपको ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा, तब तो आपको ये मान लेना है कि ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। फॉर फर्स्ट ऑर्डर n इक्वल टू 1, अगर n इक्वल टू 1 होगा तो टी हाफ 1 अपॉन टी हाफ 2 इक्वल टू C2 अपॉन C1 1 - 1 इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और 0 की वैल्यू जब किसी का पावर 0 तो वैल्यू होगी 1। इसका मतलब जो कंसंट्रेशन है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। इसलिए अगर टी हाफ और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आपको यहां एक स्ट्रेट लाइन ऐसी मिलेगी जो कंसंट्रेशन को हमेशा कांस्टेंट बनाए रखेगी, कंसंट्रेशन को हमेशा कांस्टेंट। टी हाफ बढ़ता गया ये स्ट्रेट लाइन मिलेगी। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर अगर जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होती है उस केस में अगर हमारा रिएक्टेंट ए प्रोडक्ट में चेंज होता है प्रोडक्ट, फिर क्या होगा, रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट इक्वल टू रेट को क्या लिख सकते हैं माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम इक्वल टू के एक्टिव मास ऑफ ए पावर 0। अब यहां पे एक्टिव मास ऑफ ए पावर 0, किसी भी वैल्यू का पावर अगर 0 है, किसी भी यूनिट अमाउंट में पावर 0 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। इसको रीअरेंज कर दीजिए, रीअरेंज क्या मिल जाएगा आपको माइनस डी ए, इसकी वैल्यू 1 है। यहां पर डिवाइड करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वैल्यू बन जाएगी आपको के डी टी। अब इसी इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दीजिए। ऑन इंटीग्रेटिंग माइनस डी एक्टिव मास ऑफ ए इक्वल टू के डी टी, क्या मिल जाएगा आपको, ये मिलेगा ए इक्वल टू के टी प्लस आई। आई क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। आई को क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब यहां पे देखिए व्हेन टी इक्वल टू 0 यानी टाइम हमारे पास 0 है, कोई टाइम दिए नहीं, उस टाइम पे प्रोडक्ट तो नहीं बना होगा, और जब प्रोडक्ट नहीं बना होगा तो प्रोडक्ट की वैल्यू 0
हो जानी चाहिए। और उस केस में इसको अप्लाई करेंगे तो टाइम 0 है तो इसमें 0 से k में मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस एक्टिव मास ऑफ ए इक्वल टू आई वैसा क्या इंटीग्रेशन कांस्टेंट, लेकिन कंडीशन क्या है व्हेन टी इक्वल टू 0, तो ये जो कंसंट्रेशन आएगा ये 0 आएगा 0, और इस केस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकलेगी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट इस इक्वेशन में इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू रखेंगे तो क्या मिलेगा माइनस ए इक्वल टू के टी माइनस ये वैल्यू यहां आ जाएगी ए इस वैल्यू को इस साइड में लाइए, माइनस से इधर हो गया प्लस ए नॉट माइनस ए इक्वल टू के टी। अब के की वैल्यू निकालना है तो के से निकाल लेंगे ए नॉट माइनस ए क्या है ये कंसंट्रेशन एट एनी टाइम, टी टाइम, ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन। अब हमारे पास इसी को हाफ लाइफ के फॉर्म में रखा जाए तो जब हमारे पास ए नॉट जो है ए मीन्स concentration of reactant at time when half of the reactant change into product। ऐसे समझ लीजिए A changes to product T इक्वल टू 0 रहा होगा, जब हमने टाइम दिया ही नहीं तो उस समय तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, तो यहां पर कंसंट्रेशन क्या बनी रहेगी A नॉट, उस टाइम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0। आफ्टर टाइम टी कुछ टाइम बीत गया यानी हमने टाइम कितना एक्सपेंड किया टी हाफ के बराबर टाइम एक्सपेंड किया, तो इसका जो अमाउंट बना वो बना 1/2 ए नॉट, ये इतना रह गया और यहां पर 1/2 ए नॉट बन गया, यानी ए नॉट जो था इसका 50% यहां रह गया 50% यहां रह गया। अगर इस फॉर्म को रखा जाए इस फॉर्म में तो यहां कितनी बची अमाउंट कितनी बची हुई है, अब यहां पे देख सकते हैं टी हाफ के टर्म में निकालना है तो 0 ऑर्डर के लिए टी हाफ इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ ए अपॉन 2k, इस तरह से हम 0 ऑर्डर का हाफ लाइफ भी निकाल। नेक्स्ट फॉर फर्स्ट ऑर्डर सपोज वी टेक ए रिएक्शन व्हेन A चेंजेस टू प्रोडक्ट। फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट लॉ रेट को क्या लिखेंगे माइनस डी एक्टिव मास ऑफ ए अपॉन डी टी इक्वल टू के एक्टिव मास ए पावर 1, लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां पे इस चीज को रीअरेंज करते हैं, रीअरेंज करने पर ये इस साइड में आ जाएगा, क्या बन गया माइनस डी एक्टिव मास ऑफ ए अपॉन डी टी डी ए इक्वल टू के डी टी। अब इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन यू फाइंड आउट माइनस ln a
इक्वल टू के टी प्लस आई व्हेन टी इक्वल टू 0। फिर वही इनिशियल कंडीशन को हम बोलते हैं टी इक्वल टू 0, यानी हम इसको क्या बोल रहे हैं, इनिशियल कंडीशन। जब हमारे पास टाइम एक्सपेंड ही नहीं हुआ तो प्रोडक्ट बना नहीं, और जब प्रोडक्ट ही नहीं बना तो उस केस में यहां पे t की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, ये हो जाएगा माइनस ln a इक्वल टू, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, i को क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब इस वैल्यू को आई को इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू रखने पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या हो जाएगा, माइनस ln, यहां देखिए इक्वेशन में a इक्वल टू के टी, इसकी वैल्यू माइनस में आई, माइनस ln a, लेकिन ये कौन सा है, a नॉट, मीन्स ये 0 स्टेट पे है जब टाइम हमारा 0 रहा होगा। अब इसकी वैल्यू को रीअरेंज कर दीजिए, ये माइनस से इस साइड में आकर प्लस हो जाएगा, ln a नॉट माइनस ln a इक्वल टू के टी प्लस इक्वल टू के टी। अब यहां पर के टी इक्वल टू हो जाएगा, ये वैल्यू है, आपको इस तरह से देखना होगा, लॉग m माइनस लॉग n इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं लॉग m बाई n। इस फॉर्म में हम चेंज कर रहे हैं, चेंज करने से क्या बन जाएगा, ये बनेगा ln a नॉट अपॉन a। इसको ऐसे लिख सकते हैं k इक्वल टू 2.303 अपॉन t लॉग a नॉट अपॉन a। ln को log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो ये 2.303 मल्टीप्लाई हो जाता है, इसलिए यहां पर हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2.303 से। अब a नॉट ये इनिशियल है, तो उस केस में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं k इक्वल टू 2.303 अपॉन t इक्वल टू लॉग a अपॉन a माइनस x। अब इस इक्वेशन को बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड इक्वेशन। अब हमारे पास टाइम इतना एक्सपेंड कराया जाए कि रिएक्टेंट जो है कंप्लीट आधा 50% कंप्लीट हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, व्हेन t इक्वल टू टी हाफ इसके बराबर हो जाए, हम क्या लिख सकते हैं इसको, k इक्वल टू
2.303 अपॉन 3/2 log a अपॉन a माइनस a/2। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर x जो है a/2 के बराबर में हो जाएगा। अब इस वैल्यू से क्या मिला हमें? यहां पर मिलेगा a/2, a से a कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, log 2 बनेगा कि इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपॉन t/2 log 2, और log 2 की वैल्यू रख देंगे यहां पे कि इक्वल टू 2.303 इंटू 0.3010, ये log 2 की वैल्यू होती है t/2, या हम t/2 निकालना चाहते हैं इससे, t/2 इक्वल टू 0.693 अपॉन k। इस तरह से आपको रेट कांस्टेंट से t/2 या t/2 से रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं। स्यूडो केमिकल रिएक्शन। Pseudochemical reaction are those reactions in which order of reaction determined experimentally is other than the expected. Suppose हम लेते हैं केन शुगर C12H22O11, इसको बोलेंगे सुक्रोज। अब इसमें वाटर के साथ इसका इन्वर्जन कराते हैं एसिडिक मीडियम में, जिसका प्रोडक्ट बनेगा C6H12O6 प्लस C6H12O6। एक को बोलेंगे ग्लूकोज, एक को बोलेंगे फ्रक्टोज। अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो बनना है, इसमें इस रेट में, रेट अगर देखा जाए, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसमें दो स्पीसीज पार्टिसिपेट कर रही है। एक तो एक्टिव मास ऑफ C6C12H22O11, एक मॉलिक्यूल है आपका सुक्रोज का, दूसरा मॉलिक्यूल है वाटर का। अगर ऑर्डर देखें तो 1+1 सेकेंड ऑर्डर की होनी चाहिए, बट H2O taken as excess means there is no effect on concentration of H2O, therefore order depend upon sucrose molecule only. This is फर्स्ट ऑर्डर। अब इसके अकॉर्डिंग आपको ऑर्डर मिलता 1+1 = 2, लेकिन रेट अगर हम सिर्फ इस पे डिपेंड कर रहा है C12H22O11 पे, तो ऑर्डर क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि इसका पावर 1 है तो ऑर्डर भी 1 होगा। अब ये ऑर्डर 1 है, ये एग्जैक्ट यही ऑर्डर पाई जाती है, ये थियरी के बेस पर कैलकुलेट कर रहे हैं, ये डिफरेंट है। इसलिए जो जब यहां पर एक्सपेक्टेड और कैलकुलेटेड में डिफरेंस आ जाता है, जो एक्सपेरिमेंट डिटरमाइन करता है उससे डिफरेंस आता है, तो उसको बोलेंगे स्यूडो केमिकल रिएक्शन। अब इस रिएक्शन का नाम होगा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन। अब इसमें
रेट कांस्टेंट निकालना है तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू इंटीग्रेटेड रेट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का होता है 2.303 अपॉन टी लॉग एक, यहां पर इनिशियल होगा यहां पे एट टाइम टी, तो उस केस में हमको यहां पे लिखना है आर नॉट माइनस आर इनफाइनाइट आर टी माइनस आर इनफाइनाइट, वेयर आर नॉट आर जीरो इक्वल टू इनिशियल रीडिंग, जब हमारे पास इनिशियल रोटेशन इनिशियल इन्वर्जन था उस टाइम कितना था, सपोज इनिशियल इन्वर्जन आपका होता है यहाँ पे प्लस 66.5 डिग्री, ये रोटेशन होता है, और जब हमारा स्टार्ट हो जाता है ये होता है प्लस 52.5, और ये जब फ्रक्टोज का होता है तो इसका होता है माइनस 92 डिग्री। तो इस तरह से अलग अलग ये रोटेशन होता है। इस रोटेशन ये आर जो लिया गया है, आर स्टैंड फॉर रोटेशन, रोटेशन एट इनिशियल, रोटेशन एट टाइम टी, रोटेशन एट इनफाइनाइट। ये वैल्यू अगर गिवन है इक्वेशन में तो आप रेट कांस्टेंट या टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट कर लीजिए। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। H3C डबल बॉन्ड O C2H5, इसको बोलेंगे एस्टर। और जब इसमें हाइड्रोलिसिस कराते हैं, हाइड्रोलिसिस का मतलब है एक्सेस ऑफ वाटर, रिएक्शन होगा H2O एक्सेस, इसमें जो प्रोडक्ट मिलेगा एक CH3C डबल बॉन्ड OH, इसको बोलेंगे एसिड, प्लस C2H5OH, इसको बोलेंगे एल्कोहल। अब देखिए यहाँ पे एल्कोहल और एसिड दो प्रोडक्ट मिला है। एसिड को हम बेस से न्यूट्रलाइज करते जाएं तो टाइट्रेशन करने से पता चल जाएगा कि कितना इसमें एसिड बन पा रही है। तो इसलिए अगर इसमें कंडीशन में एसिड है तो एसिड रिएक्ट विद बेस CH3C डबल OH प्लस NaOH, ये क्या बन जाएगा यहाँ पर CH3C डबल ONa प्लस H2O, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन हो गया, साल्ट का फॉर्मेशन हो गया, और जितना अमाउंट में एसिड बनी होगी उतना ही अमाउंट NaOH का यूज किया जाएगा। अगर इस तरह की रिएक्शंस है तो आप NaOH का अमाउंट डिफरेंट इंटरवल पे एक्सपेरिमेंट में कितना यूज किया गया है इसको हम देख करके और आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये किस तरह की रिएक्शन बनेगी। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर हम इसे हाइड्रोलिसिस कराएंगे एक्सेस ऑफ वाटर में तो इसके लिए रेट इक्वेशन बनना चाहिए, रेट इक्वेशन रेट इक्वल टू K into active mass of ester and active mass of water। लेकिन वाटर फिर एक्सेस में लिया गया इसलिए इसका कोई रोल नहीं होगा, ऑर्डर सिर्फ एक पर डिपेंड करेगा, इसलिए ऑर्डर यहां बनेगा फर्स्ट ऑर्डर का, और देखने में लग रहा है सेकेंड ऑर्डर और एक्चुअल में ये फर्स्ट ऑर्डर है, इसलिए इसको बोलेंगे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट में एसिड बन रहा है इसको हम टाइट्रेट करेंगे। कैसे? एसिड को बेस से मिलाएंगे तो ये साल्ट बनेगा, और जैसे जैसे जितना अमाउंट हम NaOH का यूज करते चले जाएंगे वो हमें एक्सपेरिमेंट में पता चलता जाएगा। जितना NaOH यूज करेंगे उतना ही एसिटिक एसिड बना रहा होगा, और इसलिए अगर हम फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन को फॉलो करें K इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग V नॉट V इनफाइनाइट माइनस V नॉट V इनफाइनाइट माइनस VT, यहाँ पर टर्म है V नॉट इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम ऑफ NaOH। जब हमारे पास रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है
उस टाइम में हमें NaOH के कितना अमाउंट यूज कर रहे हैं, और रिएक्शन स्टार्ट हो गई उसके बाद कुछ आपका एसिड बना होगा, जो एसिड बना है उसके लिए NaOH कितना लिया गया, वो हमारा टाइम, वो वॉल्यूम जो है वो कहलाएगा VT, वॉल्यूम ऑफ NaOH। और रिएक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो गई तो जो वॉल्यूम लिया जाएगा वो है V इनफाइनाइट। सपोज इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में 24 आवर लगते हैं, 24 आवर्स अगर लगते हैं तो 24 आवर के बाद, अब तो रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, बचा ही नहीं कोई रिएक्टेंट, तो हम क्या करेंगे उस टाइम पर NaOH का जितना लिया जाएगा उसको बोलेंगे V इनफाइनाइट। ये अगर V इनफाइनाइट से इसको रख करके वैल्यू कैलकुलेट करें तो K या हम T की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस तरह से हम स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर यानी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर के रेट कांस्टेंट और टाइम का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं।